गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। काफ़ी लंबे दिनों से हम लोग इंडिया रशिया रिलेशंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे और इंडिया रशिया रिलेशंस के बीच में आज वी आर गोइंग टू डिस्कस द बायलैटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड रशिया एंड सम कॉन्स्ट्रेंट्स ओवर इंडिया regarding the trade with Russia. So today's first news, that is India-Russia trade gap rupee internationalization efforts. Recent years में Indian Russian trades के बीच में what we have seen, there is a huge increase or a huge you can say jump in India Russia relations, and in that jump we have also seen the trade balance between these two, and Russia is buying sorry beta. So there is a huge rise between in India and Russia relations. So what we have seen, okay, Russia, India is buying a huge quantity of Russian, you can say, Russian crude oil, and India is exporting those that crude oil which is buying from Russia to all the countries, including Europe. And in that process, what we have seen that Russia is putting pressure on India to maintain the business in yuan even, because there is huge relation, there is a huge trade between Russia and China, and their bilateral relations are comparatively much better than India and China. Bilateral relations means trade relations are much better than India and China. So India aims to enhance bilateral trade with Moscow, and the point is India is trying to internationalize its currency. India trying to internationalize Indian rupee, and Russia in that case can dent India's policy. New Delhi aims to enhance bilateral trade with Moscow to $100 billion by 2030 to curb its rising oil imports will reduce dependency on US dollar. However, since the Ukrainian war 2022, trade dynamics has become skewed, with Russia now being India's top oil supplier, but India's export to Russia lagging, leading to $57 billion trade deficit out of $66 billion bilateral trade in financial year 24. This imbalance may force India to use Chinese yuan, undermining efforts to internationalize the rupee. So, Russia is putting pressure. There is possibility Russia may put pressure on India to maintain the business in yuan, because right now what the Russia is doing, Russia is buying Indian products, and Russia allowed India to pay in rupee. तो क्योंकि रशिया को अपनी इकोनॉमी चलती रखनी है, एंड द पॉइंट इज रशिया इज इंडल्ज इन यूक्रेन वॉर, and because of that Ukraine war, Russia needs India, but the point is Russia is buying so many things from China, and Russia is paying those items to China in yuan.
तो इंडिया से तो रशिया इज बाइंग नथिंग, तो इंडिया इज पुटिंग प्रेशर ऑन रशिया कि तुम मेरे से कुछ सामान ऐसा खरीदो जिसके लिए तुम्हें मुझे रुपए में पेमेंट करनी पड़े, तो मेरा रुपया मेरे पास घूम घाम के वापस आता रहेगा, तो डॉलर में मेंटेन करने की जरूरत नहीं रहेगी। लेट्स सी व्हाट हैपन। So about definition, internationalization of the rupee involves increasing the use of INR in cross-border transactions and enhancing its acceptance to liquidity, usability and global market. Now the point is, India के पास इतने ज़्यादा प्रोडक्ट होने भी तो चाहिए बेचने के लिए, और we are selling them heavy machinery, शेलर्स का सामान है या फिर आयरन के बहुत बड़े बड़े जो प्रोडक्ट्स हैं वो हम वी आर सेलिंग टू चाइना, बट उसकी लिमिटेशंस हैं, हमें ऐसे प्रोडक्ट बनाने होंगे जो डेली यूजेज के हों जैसे चाइना बनाता है, ठीक। सो उन सब में भी उसमें भी प्लास्टिक का यूजेज बहुत ज्यादा है और प्लास्टिक बनता है पेट्रोलियम से, ठीक है। नेक्स्ट इज सो दैट इज द रूट विच वी आर डिस्कसिंग, व्लादिवोस्टोक टू चेन्नई एंड फ्रॉम पोर्ट ऑफ मुंबई टू दिस इज बंदर अब्बास, एंड उसके बाद तेहरान, उसके बाद बंदर अंजाली, और यहां से फिर यूरोप से एक रूट ये और एक रूट ये जिसको हम लोग लगातार डिस्कस कर रहे हैं। Then steps taken, July 2022, RBI provided an additional arrangement of invoicing, payment and settlement of exports, imports in rupee. So RBI provided an additional arrangement of invoicing, payment, settlement of exports, imports in rupee. July 2022 के अंदर स्टार्ट होता है। December 22 के अंदर India saw its first settlement of foreign trade in rupees with Russia. Banks of 19 countries including UK, New Zealand, Germany, Malaysia, Israel, UAE have been permitted to make settlements in rupee. तो वहां पर रुपी धीरे धीरे करके इंडिया के रुपये की एक्सेप्टेंस बढ़ती जाएगी। Then how can India internationalize the rupee? Economic survey financial year 23 highlights the need of increasing use of the rupee for trade invoicing. BIS Terrennial Central Bank Survey 2022, US dollar is dominant, making up 88% of global forex turnover, while the rupee accounts for only 1.6%. Increasing the rupee's turnover to 4% could position it as international currency. Widening trade gap between Russia benefits to yuan. China's advantages. Amid Western sanctions, Chinese export to Russia have grown faster than imports of widening gap to Russia and benefits to yuan. तो इंडिया के साथ बेनिफिट होने से व्हाट विल हैपन, तो चाइना का एडवांटेज होगा। वेस्टर्न सैंक्शन, चाइनीज एक्सपोर्ट टू रशिया हैव ग्रोन फास्टर देन द इंपोर्ट्स। 2023 2023 Chinese shipment to Russia increased by 47% a year on year on year to 47% year on year to $111 billion, while imports grew by 13% of $129 billion, leading to the record two-way trade of $240 billion. Use of local currency, 95% of Chinese-Russian trade occurs in local currencies, with the yuan surpassing the US dollar in Russian stock market. So China-Russia trade जो है, it is increasing because China Russia की neighboring country है, और China रशिया इज टोटली डिपेंडेंट ऑन चाइनीज प्रोडक्ट, क्योंकि रशिया में चाइनीज प्रोडक्ट की डिमांड ठीक ठाक है और नेबरिंग कंट्री है, और उसके साथ साथ उन दोनों के बीच में बायलैटरल ट्रेड बहुत ज्यादा बेटर एस्टेब्लिश्ड है क्योंकि डिस्टेंस कम है, एंड दे आर यूजिंग लोकल करेंसीज आल्सो, तो युआन और रूबल में उनका आपस में ट्रेड है। Then impact on Russia, Russian oil exports now requires payment from Indian refineries to yuan, limiting the use of rupee. अब इससे एक एस्पेक्ट ये हो रहा है कि युआन की डिमांड जो है, युआन मीन चाइनीज करेंसी, उसकी डिमांड जो है कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। ध्यान रखना, युआन इज चाइनीज एंड येन इज जापानीज करेंसी। तो challenges to export to Russia. Reluctance of private banks. Due to the fears of Western sanctions, many banks with significant business interest in the West and hesitant to engage in trade with Russia. रशिया के साथ ट्रेड के पीछे अपने रीजंस हैं, हेजिटेशंस हैं, बिकॉज रशिया के ऊपर बहुत सारे जो यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका ने लगभग सभी ने बैन लगा रखा है, तो यहाँ पर एक हेजिटेशन है रशिया के साथ बिजनेस करने के लिए। नीड ऑफ इंक्रीज इंडियन एक्सपोर्ट्स, strengthening industrial cooperation and increasing exports to Russia were emphasizing on the joint statement of following Prime Minister Modi's visit. Difficulties in rupee settlement mechanism, absence of SOP. Exporters initially struggled to use the mechanism due to the absence of standard operating procedure for banks. Currency violation क्या है? The ruble and rupee violation compared to the more stable yuan complicates trade in domestic currencies.
सो एक एस्पेक्ट ये है कि रशिया का क्योंकि ट्रेड बहुत बैलेंस्ड है, रशिया का एक्सपोर्ट ठीक ठाक है, चाइना का ट्रेड जो है बहुत बैलेंस्ड है, और चाइना की इकोनॉमी कंपैरेटिवली स्टेबल है। इंडिया और इंडियन रुपी और चाइनीज रूबल में वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, बट युआन में नहीं, बिकॉज युआन बहुत तेज एस्टेब्लिश हुआ अपने आप को उसने किया बिकॉज ऑफ चाइनीज एक्सपोर्ट्स। तो बिकॉज ऑफ चाइनीज एक्सपोर्ट युआन की एक्सेप्टेंस जो वर्ल्ड में बढ़ती जा रही है, एज वी हैव सीन कि ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री जो है मिडिल ईस्ट की, दे आल्सो स्टार्टेड एक्सेप्टिंग युआन, येन एंड यूरो। तो दे आर सेइंग कि हम लोग यूरो के साथ साथ, हम लोग डॉलर के साथ साथ युआन, येन और यूरो में भी ट्रेड करेंगे। इसका मतलब यह है कि अब अमेरिकन हेजेमनी जो है कंपैरेटिवली वीक होती जा रही है। अब उस प्रोसेस में जब हेजेमनी वीक होती जा रही है, इसका मतलब दुनिया की बाकी कंट्रीज जो है बायलैटरल ट्रेड में उन कंट्रीज की करेंसी में, लोकल करेंसीज में पेमेंट लेने देने शुरू कर रही हैं। इसकी वजह से उनको ट्रेड बिजनेस में थोड़ा सा ईज होगा, ताकि उन पर्टिकुलर कंट्री के साथ ट्रेड जो है इंक्रीज होगा। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया अगर अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाता है, एक्सपोर्ट्स इंक्रीज करता है, तो इसका मतलब यह है, एक्सपोर्ट्स इंक्रीज करने का मतलब यह है कि अब आपको पेमेंट जो है डॉलर में मिलती है, और अगर वो कंट्री इंडिया के से कुछ सामान खरीदती है या दोनों के बीच में बायलैटरल ट्रेड है, तो देयर इज पॉसिबिलिटी इंडिया जब उस पर्टिकुलर कंट्री से सामान खरीदेगा तो उसको वो रुपए में पेमेंट करेगा, और जो कंट्री इंडिया से सामान खरीदेगी तो उसी रुपए को हमें वापस कर देगी। इसका मतलब हमें डॉलर मेंटेन करने की जरूरत नहीं रहेगी। अब एक एस्पेक्ट हमेशा इंटरनेशनल रिलेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये कि अभी तक जो ट्रेड था ये डॉलर में होता था। अब डॉलर में ट्रेड होने का मतलब ये था कि इंडिया जैसी कंट्री को या दुनिया की हर कंट्री को डॉलर मेंटेन करके रखना पड़ता था, मतलब ज्यादा से डॉलर स्टॉक रखना पड़ता था डॉलर का, और डॉलर का ज्यादा स्टॉक रिप्रेजेंट करता है किसी कंट्री के स्टेटस को, और ये कहो कि आपकी जेब में कितना पैसा है और आपकी एबिलिटी कितनी है। तो अगर आपके पास डॉलर ठीक ठाक से मेंटेन्ड है, और अगर आपके पास डॉलर मेंटेन्ड है, इसका मतलब आपकी इकोनॉमी जो है उसकी कंडीशन ठीक है। इससे क्या होगा, अगर आपके पास, मान लो इंडिया जब अपनी वेल्थ दिखाता है तो ये शो करता है कि मेरे पास इतना डॉलर है। आज से कुछ साल पहले की कंडीशन में आपको बता रहा हूं, तो उससे उस कंट्री में आने वाला जो ट्रेड होता था, या फिर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती थी, एफडीआई, हाई रहती थी। तो अब क्या हुआ कि अब कंट्रीज में जैसे जैसे अमेरिका की जो कंडीशंस हैं वो धीरे धीरे करके, क्योंकि नथिंग इज परमानेंट, अमेरिकन इकोनॉमिक कंडीशंस के शेक हो जाने से, अदर चीजें, देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच हैपेंड रिसेंटली, तो अमेरिका की इकोनॉमी के साथ साथ यूरो का राइज होना शुरू हुआ, उसके बाद येन और युआन का राइज होना शुरू हुआ, साथ साथ में रुपए का भी राइज होना शुरू हो गया। जब ये सब कुछ हो रहा है एक ही टाइम के ऊपर साइमल्टेनियसली, तो ऑब्वियसली डॉलर की डिमांड जो है वो इफेक्टिव हो जाएगी। अब जब डॉलर की डिमांड इफेक्ट होगी तो इसका मतलब ये है कि दुनिया में येन, यूरो और युआन, इन तीनों की डिमांड बढ़ी है, क्योंकि युआन की डिमांड इस करके क्योंकि चाइना ने अपने बहुत सारे प्रोडक्ट, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए जो एक्सपोर्ट कर सकता है। अब जब एक्सपोर्ट कर सकता है तो कंट्रीज को उन्होंने अलाउ किया कि आप हमसे कुछ खरीदो, हम आपसे कुछ खरीदेंगे, बट अब पेमेंट का जो मीडियम रहेगा वो युआन रहेगा। तो बायलैटरल रिलेशंस का बेटर हो जाना एक बहुत बड़ा सिंबल था। अब इससे क्या हुआ कि युआन की वैल्यू जो कंपैरेटिवली बढ़नी शुरू हुई, तो युआन की वैल्यू बढ़ना शुरू हुई। अब रशिया जैसी कंट्रीज जो चाइना के साथ ट्रेड करते हैं, उनके पास युआन का स्टॉक बढ़ना शुरू हो गया। अब पॉइंट ये कि अगर बहुत सारी कंट्रीज के पास आपकी करेंसी पड़ी रहेगी और आप लगातार एक्सपोर्ट करते जा रहेंगे, और आपकी यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, चाइना में हमेशा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी, और अगर आपके पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है तो युआन के प्राइसेस में अप्स एंड डाउन्स नहीं आएंगे। इंडिया में डिमांड एंड सप्लाई, पॉलिटिकल कंडीशंस, सेम कंडीशन रशिया के अंदर, डिमांड एंड सप्लाई, पॉलिटिकल कंडीशंस, तो इकोनॉमी में वॉलेटिलिटी रहेगी, अप्स एंड डाउन्स रहेंगे। ठीक है, अब इससे रशिया ये चाह रहा है कि बैंक्स भी और बाकी सब सिस्टम भी कहते हैं अब युआन में पेमेंट कर लो। अब रशिया युआन में इस करके पेमेंट मांग रहा है क्योंकि उसको चाइना को जब सामान बेचना होगा या चाइना से उसको जब सामान खरीदना होगा तो रशिया युआन में पेमेंट कर देगा। तो इंडिया से डिमांड कर रहा है कि आपका ट्रेड तो है ही है चाइना के साथ, तो इस करके आप ये करो कि चाइना को आप युआन में, आप अपने पास युआन स्टॉक बढ़ाओ, मेरे को पेमेंट युआन में कर दो, ताकि रशिया, यानी कि मैं जब चाइना से सामान खरीदूं उसको युआन में पेमेंट कर दूं, उसकी करेंसी में। तो क्योंकि रशिया के ऊपर बैन बहुत ज्यादा है, रशिया यूरो में और डॉलर में स्टॉक जमा नहीं रखता, करेंसी जमा नहीं रखता, क्योंकि उसके पास उन कंट्रीज ने वैसे ही बैन किया हुआ है,
और वैसे भी उसकी बनती नहीं उन कंट्रीज के साथ। सो दिस इज द एस्पेक्ट। तो इससे क्या होगा कि युआन की वैल्यू तो बढ़ेगी, और इंडिया चाह रहा है कि रशिया रुपए में ट्रेड करे, और रशिया अगर रुपए में ट्रेड करता है कि हम जब रशिया से पेट्रोल खरीदें या क्रूड ऑयल खरीदें तो हम रशिया को पेट्रोल में पेमेंट करें, रुपए में पेमेंट करें, पेट्रोल की पेमेंट हम रुपए में करें। पर उसके बाद रशिया उस रुपए का करेगा क्या? अब उसके लिए जरूरी है को इंडिया से कुछ सामान खरीदे। तो इस सेंस में इंडिया अपना बायलैटरल ट्रेड जो है उसको इंक्रीज करना चाहता है। तो ये कहानी है कुल मिला के। नेक्स्ट इज so reluctance to private banks due to the fears of Western sanctions. Many banks with significant business interest of the West are hesitant to engaging in the trade with Russia. Need of increased Indian exports, strengthening industrial cooperation with increased export to Russia were emphasized on the joint statement following Prime Minister Modi's visit. Then difficulties in rupee settlement mechanism, absence of SOP, exports initiated struggle to use the mechanism due to the absence of standard operating procedure for banks. Next, currency volatility. The ruble and rupee volatile compared to more stable yuan complicates trade to the domestic currencies. So then eliminating trade barriers. During Prime Minister Modi's visit, India and Russia agreed to eliminate trade barriers and initiate negotiations for trade deal with Russia-led Eurasian Economic Union (EEU). Industrial cooperation, cooperation in manufacturing sectors such as transport, engineering, metallurgy and chemicals, and implementing joint projects in priority areas. As we have discussed, कल तो हमने डिस्कस किया था कि रशिया नीड्स इंडिया, क्योंकि उसको वॉर के लिए पैसा चाहिए, और जब तक वो कंप्लीटली यूक्रेन वॉर नहीं जीत जाता, जब तक रशिया को इंडिया की जरूरत बहुत ज्यादा रहेगी, डिपेंडेंसी इंडिया पे रहेगी रशिया की। और क्योंकि रशिया इससे पहले अफगानिस्तान में वॉर हार गया था। रीजन उसके पास ये था कि रशिया के पास बेचने के लिए कुछ था नहीं, और बेचने के लिए था तो उस टाइम पर अमेरिकन प्रेशर बहुत ज्यादा काम किया करता था, तो रशिया पेट्रोल नहीं बेच पाया था उस टाइम पे। अभी रशिया खुल के पेट्रोल बेच रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया की दिलेरी है कि इंडिया रशिया से पेट्रोल खरीद रहा है। इंडस्ट्रियल कॉपरेशन इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसके बाद रेसिप्रोकल ट्रेड फ्लोज, एक्सपैंडिंग रेसिप्रोकल ट्रेड फ्लोज टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स टू इंक्रीज देयर शेयर इन बायलैटरल ट्रेड। Migration and mobility partnership, discussions on the migration and mobility partnership agreement between the two countries. देखो रशिया से हमें क्रूड ऑयल की परचेज में हमें दिक्कत इस करके नहीं हमें ज्यादा हो रही, क्योंकि हम इसी पेट्रोल को, क्रूड ऑयल को रिफाइन करके वी आर सेलिंग इट टू यूरोप एंड अदर कंट्रीज। तो उससे इंडिया पैसे कमा रहा है, इस करके इंडिया को ज्यादा तकलीफ नहीं। अगर कोई जरूरत होगी भी तो हम लोग अल्टरनेट रूट जरूर ढूंढ लेंगे रशिया के साथ ट्रेड में। देन कंक्लूजन, एड्रेसिंग द ट्रेड गैप। हमें सिर्फ वो ट्रेड में दिक्कत नहीं है, द पॉइंट इज इंडिया जो रुपए को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश कर रहा है, उसको लेके थोड़ा सा हमें जो है वो स्पीड ब्रेकर का काम किया है इसने। So addressing the trade gap, Russia and promoting the international relations for rupee and crucial for India, while challenges remain especially with private banks, reluctancy and currency volatility, strategic cooperation and negotiations can help mitigate these issues to enhance bilateral trade and economic ties.